A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing specimen paper English language solution of essay writing. Okay, we have already done the parts of this कि हम लोग को एक ऐसे में क्या लिखना है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ऐसे में क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए और क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए. This solution I have taken from Goyal's. दिस इज गोयल्स आईएससी इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल टेस्ट पेपर. सो ये उसी का ही सॉल्यूशन है. ये हमने कॉम्पोजिशन पार्ट इसका लिया है क्योंकि इसका कंटेंट अच्छा है, बट इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ही इसको करेंगे. ओके, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज you have recently shifted to a new city. Describe the area where you live, your next door neighbors, the difficulties you faced while shifting, and why you like or dislike the place. ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है. एंड ऑब्वियसली that you have recently shifted to a new city, तो ये आपका कौन सा टाइप है? ये आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है. पहले पढ़ लो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या क्या लिखना होता है. सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द ऐसे शुड बी कंसिडर्ड. डिफरेंट फ्रॉम नैरेटिव. नैरेटिव के जैसा ये नहीं होता है. डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होता है. आपको इसमें चीजों को डिस्क्राइब करना है और हर पार्ट को इक्वल वेटेज देना है. मतलब जितनी भी चीजें, ये नहीं कि आप 2 लाइन का एक पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहे हो और 2 लाइन की एक और चीज डिस्क्राइब कर रहे हो. सेंसरी डिटेल्स इसमें होती हैं. आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, क्या टच किया, क्या टेस्ट किया, ये सारी चीजें आप इसमें बताओगे. यू कैन यूज द स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. बी, लुक, सीन के वर्ब्स आप उसमें यूज कर सकते हो. देन what are your impressions or feelings or associations with it, and figures of speech अगर कोई है तो that also, or some sort of comparison also you can do here जिसमें कि descriptive है. तो the answer here is it was a warm evening when the news came. Now अब बहुत सिंपल सी एक चीज समझ लो कि इतना जो आपका पार्ट है, you have recently shifted से ये चीज शुरू हुई है. हाँ, आप प्लॉटिंग के लिए इतना लिख सकते हो कि हाँ वी वर शिफ्टिंग टू दैट प्लेस, बट एक्चुअली आपका जो ऐसे होगा वो यहीं से शुरू होगा. मीन्स आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे. ओके, तो बहुत ज्यादा लेंदी मत रखना इस प्लॉट को, पहले के प्लॉट को, कि हाँ वहां से लेकर वहां तक पहुंचने का जो ड्यूरेशन है उसको छोटा रखना. बहुत लंबे लंबे उसमें आंसर्स मत लिखना. क्या लिखा हुआ है? इट वॉज अ वार्म इवनिंग व्हेन द न्यूज केम. फादर हैड अ rather worried look on his face. Mother rushed to get him a glass of water as he had just returned from work. ये आपकी प्लॉटिंग दिखाई जा रही है यहाँ पर कि exactly shift हुए क्यों थे ये लोग. I sat beside him and asked him about his worried look. The words he uttered got me quite worried as well. उन्होंने, फादर ने क्या कहा, क्या रीजन दिया? that I have been shift transferred to Bengaluru. Father said with a sad look on his face. We both knew that it would be. We both कौन है? Mother and the daughter, means you are the person, daughter or son, that you both thought कि it would be challenging for both of us to shift, but the real anxiety was due to the thought that we would lose contact with people we had known for what seemed like ages. मतलब बहुत समय से हम उन लोगों को जानते हैं, तो just to leave them was very much worrying for us. Mother did not waste time and she already had begun preparations for shifting. Then obviously leaving Patna was bound to make me feel little bad. यहाँ पर आप अपनी feelings भी describe करोगे. Okay, but I knew that new beginnings, new friends, new experiences awaited me in Bengaluru. You have shifted to a new place. Shifting caused me quite a bit of chaos, considering the distance between Patna and Bengaluru, around 2000 kilometers. ये भी आप उसमें mention कर सकते हो कि हाँ, wherever the place you shifted was this much long. It took us more than 2 weeks to move all our belongings to the destination. I hurt my knee while helping to move the refrigerator into the house, but it's all right now. देखो, बहुत सिंपल सी चीज. यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कहा गया है? दैट इसके जो पार्ट्स हैं ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो, इट्स ओके, बट
फिर भी वो थोड़े से एक साथ रहने चाहिए। जैसे कि जो भी आप एरिया जा रहे हो, जहाँ पे भी आप हो, आप उसको डिस्क्राइब करोगे। यू विल ऑल्सो डिस्क्राइब योर नेक्स्ट डोर नेबर्स। यहाँ पर उसने सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट था वो क्या था, द डिफिकल्टीज यू फेस्ड व्हाइल शिफ्टिंग। ओके, तो ये वाला पार्ट उसने ऑलरेडी कर लिया है कि दैट शिफ्टिंग वाज बिट ऑफ योर। सो यहाँ पर एवरी टाइम यू विल गेट अ न्यू पॉइंट, व्हाट यू विल डू, यू विल चेंज द पैराग्राफ। हेडिंग्स इसमें नहीं लिखी जाती हैं। I noticed a sharp contrast between Bengaluru and Patna. The scene. अब यहाँ पर आपको क्या बताना था, place that you live, ठीक है, उसको आपको डिस्क्राइब करना था। तो it is quite different from what I used to witnessing in my hometown. Every house has its own garden. इसकी जगह पर आप और अच्छे तरीके से ये भी कर सकते हो कि एक सीनिक व्यू लो, किसी भी जगह का व्यू लो, जैसे कश्मीर हो गया, या फिर वो जो ईस्ट साइड में जितनी भी सिटीज हैं, सिक्किम हो गई, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर उनके एक एटलीस्ट प्लेस, या नैनीताल हो गया, देहरादून में कोई भी और जगह हो गई, उसकी जगह की जो सीनिक व्यूज हैं उनको अपने पास कहीं नोट डाउन कर लो। इन केस आपको कोई सी प्लेस डिस्क्राइब करनी हो तो कम से कम आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे हाउसेस और इन सब के लिए लिया गया है that every house has its own garden and few trees at the door. Our neighbors have a lot of flowers in the garden. Mother already planning about what would be planted once their shifting was done. ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली उन जगहों को लिख सकते हो इसकी जगह पे। सी दिस इज अ वेरी मच फॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग की गई है इसमें कि हाँ एकदम एग्जैक्टली यही चीजें बताई गई हैं। तो यू एज अ राइटर, ऐसे राइटर, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक कोई जगह लो, एक प्लेस को, एक सुंदर, सपोज यू हैव शिफ्टेड टू अ हिल स्टेशन, तो आप उस जगह को कैसे डिस्क्राइब करोगे, दैट यू कैन राइट हियर। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है, डिस्क्राइब द एरिया दैट यू लिव, कि वेर एवर यू लिव, आप उसमें नेबर्स भी डिस्क्राइब, देखो यहाँ पर नेक्स्ट डोर नेबर्स को उसने डिस्क्राइब किया है, बट आप उसका एरिया भी बहुत सुंदर से डिस्क्राइब कर सकते हो। इट्स क्वाइट अ नाइस लोकेलिटी ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, 40 फीट रोड्स। अब यहाँ पर वो उस एरिया को डिस्क्राइब कर रही जहां पर वो रहती, that it is there's a hypermarket at the walking distance, very nice, welcoming people all around, कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा नाइस हैं। ठीक, when you will write something on it, आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा आपसे, जंगल पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द जंगल, डिस्क्राइब दैट प्लेस। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब प्लेस हो गया, प्लेस हो गया, फॉरेस्ट अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो वो, वहां की रोड्स, वहां की मार्केट, मार्केट के लिए आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी तो उनके वर्ड्स ले सकते हो, एग्जैक्टली वो चीज कॉपी मत करना। देयर आर ट्रीज एवरीवेयर, एवरीवन हैज सम पेट, और अदर एट होम, दो डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन, कि ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि वहां पे बहुत सारे लोगों के पास पेट्स हैं, मतलब डॉग्स हैं एज पेट्स। देयर इज अ टाइनी होटल अराउंड द कॉर्नर that sells steaming hot crispy dosas. Okay, our neighbors are very nice people. Now यहाँ पर उनके neighbors के बारे में describe किया गया है। To the left of our house we have another migrant, मतलब जो कहीं और से आए हैं, Wilson uncle and his family. They came from their village in Tamil Nadu around 15 years. मतलब वो इतने समय पहले यहाँ पर आए थे, and they have adopted quite well to the Kannadiga life of बेंगलुरु। टू द राइट वी हैव कुमार अन्ना, इधर के नेबर आप सबको डिस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा, यहाँ इसमें एक और चीज बहुत सिंपल सी, इसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं बहुत सुंदरता से, बहुत ही प्रिटी प्रिटी दी हुई हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी उतना ही पॉजिटिव वे में उसको लिखो। इफ यू आर फाइंडिंग इट नाइस, आप उसको पॉजिटिव वे में लिखो। अगर आपको वो जगह अच्छी नहीं लिख रही है तो आप उसको नेगेटिव वे में लिख सकते हो। Okay, he was born and brought up in Bengaluru. यहाँ पर इन neighbor की बात की जा रही है। He's pretty nice as well. He showed my father and me around the locality and introduced us to many people. He speaks fluent Kannada. Okay, then honestly, honesty नहीं honestly है ये,
इसीलिए कहते हैं कि गाइड्स पर ज्यादा भरोसा मत किया करो। आई लव बेंगलुरु अ बिट टू मच, कि हाँ मुझे वो चीज जगह पसंद आई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दैट यू हैव टू टेल द डिफिकल्टीज की क्या क्या हुई थी, उसके बाद वाई यू लाइक और डिसलाइक द प्लेस। दोनों में से एक ही एक ही चीज बताओगे कि या तो आपको पसंद आई है तो क्यों, और अगर नहीं पसंद आई है तो क्यों, दोनों नहीं लिखोगे। आई गेट अ चांस टू ईट माई फेवरेट फूड एवरी डे, शी हैज गिवन रीजंस। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, पीपल बहुत ही वेलकमिंग है, मीन्स बहुत एक्नॉलेजिंग है, हेल्पिंग हैंड्स है। I can't wait to make new friends at school and see what wonders this city holds. और जब मेरा स्कूल खुलेगा तो I'll be making new friends and I'm waiting when मतलब for the new wonders that the city has and we are here to see them. Okay, this was descriptive. अब यहाँ पर there's one more thing that you need to know. Tell the that your feelings and emotions and associations, मतलब यहाँ पर देखो स्पेशली क्या कहा गया है कि चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इसमें है नहीं, बट देयर आर थिंग्स, जैसे आपको अपने बारे में, जगह तो आप बता दे रहे हो कि देयर आर ट्रीज हैं एवरीवेयर, सम पेट्स हैं, अदर मतलब डॉग्स हैं एट होम, देयर इज अ टाइनी होटल, बट वेयर यू आर, आपको अपने बारे में भी, अपना भी एक्सपीरियंस उसमें शेयर करना है, दैट यस यू वेंट टू दिस प्लेस, यू बॉट दिस एंड इट वाज वेरी नाइस। और ऐसे करके कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो जहां पर आपकी फीलिंग्स शो हो रही हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प्ड समवन प्रिपेयर अ मील, दिस इज योर नैरेटिव। ऐसे तो हम लोग नैरेटिव में पहले देख लेते हैं कि क्या चीजें आती हैं। नैरेटिव के लिए क्या बोला गया है, इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल एक्सपीरियंस आपको देना है, आप क्या सोचते हो, एंड ऑल द एस्पेक्ट्स शुड बी टेकन। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, दैट किसी को भी हेल्प करने जा रहे हो तो आप उस पर्सन को डिस्क्राइब करो। ठीक, राइजिंग एक्शन, क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या था वहां पर, क्लाइमैक्स, दैट यस यू हेल्प्ड देम। फॉलिंग एक्शन की थिंग्स वर गेटिंग ओवर, एंड देन द लेसन लर्न। देन अब लास्ट में उसका लिखोगे कि ये जो नैरेटिव था, ये जो मैंने इतनी आपको कहानी बताई, उससे मैंने क्या सीखा। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे ही करके स्टार्टिंग दी गई है। इसके लिए हमने आपको ऐसे राइटिंग में ही बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए थे जो आप पढ़ सकते हो, दैट ऑल्सो आई हैव सेंड यू ऑन टेलीग्राम। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, खासकर ये ऐसे वाले कॉम्पोजिशन वाले, तो इन सबको चेक कर लेना। ऐसे इज सम सॉर्ट ऑफ इलेबोरेशन एंड कॉम्पोजिशन किसी भी तरह का होता है, उसमें आप पोएट्री भी लिख सकते हो, शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकते हो, वन वर्ड भी लिख सकते हो, सॉन्ग भी लिख सकते हो, तो दैट इज नोन एज अ कॉम्पोजिशन। It was yet another mundane day, means dull day for the siblings to get through while their parents were away at work. Being awake, Sakura couldn't hold in her race towards her elder brother. यहाँ पर ये narrate an incident from your own experience, जब आपने किसी को help किया, ओके, तो explain what you did, आपने क्या किया, and what experience you gained। तो यहाँ पर एक person किसी और की बात कर रहा है कि यहाँ मतलब बहुत सारे, इट वॉज अ डल डे एंड सेकुरा, एक शी इज अ गर्ल, और वो अपने एल्डर ब्रदर पर गुस्सा रही थी और उसके पेरेंट्स बाहर थे। एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, युकी, who was asleep till 12 noon, जो 12 बजे तक सो रहा था। bucket of water was enough to threaten him। बकेट ऑफ वाटर से उस लड़की ने, क्या नाम था, सकुरा, उसने उसके ऊपर पानी डाला। शी रोड, उसने गुस्साया, दैट मुझे भूख लगी है, कांट यू कुक समथिंग, और जस्ट बिकॉज कि उसके पेरेंट्स घर के बाहर थे, घर पे सिर्फ भाई बहन थे। तो ये जो भी पर्सन है जो नरेट कर रहा है इस स्टोरी को, लाइक इफ यू आर नरेटिंग, तो जरूरी नहीं कि आप घर के अंदर ही किसी की हेल्प करो, आप घर के बाहर भी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो सकुरा अपने भाई से कहती है कि कांट यू कुक समथिंग, शी वॉज अडोरेबल लिटिल लॉयनेस टू हर बिग लेजी ब्रदर, और वो बहुत ही ज्यादा शेरनी जैसी थी, उसका नेचर ऐसा था। युकी फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द किचन। अब ये याद रखना, वेन एवर यू विल अटेम्प्ट नैरेटिव, इट विल बी पास्ट टेंस, कंप्लीट पास्ट टेंस। आप कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे हो जो एक्चुअली पास्ट में हो चुका है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट द नोट
Their mom left. I am late. Make something for yourself and your sister. Being their neighbor, I could hear the amount of chaos that the note has caused. कि वहां पर एक चिट्ठी उनके पेरेंट्स छोड़ के गए थे कि हमको लेट हो जाएगा और आप कुछ बना करके खा लेना. ओके. Sakura's shrill voice pierced my ears. यहाँ पर जो नरेटर है वो ये चीज बोल रही है कि जो सकुरा द नेबर है उसके काम मतलब उसकी जो आवाज थी वो मेरे कानों में जा रही थी. इट्स बेटर टू स्टार्व दैन टू eat meals cooked by you and it was enough for the kids to quarrel. कि वहां पे यही सब आवाजें आ रही थी कि खाना खाने से अच्छा है कि हम भूखे रहें, तुम्हारे हाथ से खाना खाने से अच्छा. और इसी पर ही दोनों बच्चे बहस कर रहे थे. मैंने उस डोर पर नॉक किया. जो भी पर्सन है जो भी ये लिख रहा है लाइक इफ यू आर राइटिंग तो आप हुए, आपने उस डोर पर नॉक किया. आई टोल्ड देम लेट्स ईट टुगेदर, आई विल कुक फॉर यू किड्स. युकी वॉज टिमिड, ओके, वेरी वीक और अफ्रेड. He said, "We are sorry to trouble you." यूकी ने कहा, जो बॉय था उसने कहा, एल्डर ब्रदर था उसने कहा कि हम आपको परेशान करने के लिए we are sorry, but would you please help us prepare the meal? पर क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो? Sakura was rather excited to help और Sakura was happy कि हाँ वो हेल्प भी कर सकती है. I would help Yuki and Sakura would also help us. We gathered in the kitchen. Yuki began cutting the potatoes and while Sakura took onions. Yuki ने क्या किया? He began cutting potatoes and Sakura took onions. It was her first time and as expected, she had her eyes bawled out क्योंकि obviously she had taken onions तो उसके eyes में बहुत सारे tears हो गए थे. I was exhilarated. I was happy to help these kids. मैंने राइस कुक किया, एक पोटैटो डिश बनाई. मतलब जस्ट बिकॉज कि वो लोग ने मुझे सब कट करके दिया तो इस चीज में मैंने उनकी हेल्प की. ओके. माई अप्रेंटाइज, माई लर्नर, जो मुझसे सीख रहा था, यूकी वॉज एंजॉइंग दिस लेसन ऑफ लाइफ. आई एडेड अ टी स्पून ऑफ एक्सपीरियंस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने पास लिख सकते हो. that I added a teaspoon of experience. हमने अपना थोड़ा सा experience, थोड़ा सा excitement and a pinch of love उसमें add किया. I made sure that this dish was the best the kids ever had. Meanwhile, Yuki and Sakura got into yet another fight over who would wash the dishes. और उसके बाद दोनों इस चीज पर भी लड़ पड़े कि कौन उसको अब ये जो डिशेस हैं उनको कौन वॉश करेगा. आई वंडर व्हाई किड्स वांट टू डू एल्डर्स वर्क. और हाँ मतलब वो कह रही कि हम सोच रहे हैं कि क्यों लोगों को ऐसा लगता है बच्चों को बड़ों का काम करना चाहिए. Even I was once like that. However, as time flows, we tend to grow lazy. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लेजी हो जाते हैं. अब किसी को ये काम करने का मन नहीं होता है. ओके. hours passed by in the blink of eye. जितना वो पूरा टाइम था वो पूरा खत्म हो गया. अब स्टोरी को यहाँ पर खत्म मत कर देना कि हमने मतलब बना दिया खाना और उन्होंने खा लिया. उस चीज को पूरी स्टोरी को कंप्लीट करो. Twilight was rather sad than evening that evening, but I wanted to relive my days as a kid. इसीलिए मैं बच्चों के साथ वहां पर रहती थी so that I can relive my past. I kind of pitied those children, they barely saw their parents. कि वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को देख भी नहीं पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स काम पर गए होते हैं. I often felt like they had abandoned them. कि उनके पेरेंट्स ने मतलब वो ऐसा सोच रही थी कि उनके पेरेंट्स ने उनको abandon कर दिया है. While chasing after money, their mom knocked at the door. Sakura ran towards mom and said, "You know what? Today Yuki and I cooked the meal and Didi also helped us." अब एक चीज बहुत ध्यान से इसमें रखना, ठीक है? आपका जो क्वेश्चन है मतलब this is the thing you need to know, that you have to tell something from your own experience. When you helped prepare the meal, explain आपने क्या किया and what experience you gained from this. Keep it in mind. ये हिस्सा यहीं पर ही खत्म हो गया है, ठीक है? इसके आगे का जो पार्ट है उसकी भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका क्वेश्चन ही नहीं. यहां से तो एकदम नॉर्मल सा, इवन मैं उसको पढ़ूंगी भी नहीं. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ, ठीक है? तो इलैबोरेट द थिंग्स, जैसे समझ लो
यहाँ पर लिखा हुआ है नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प समवन प्रिपेयर द मील। स्टार्ट करो अपने, जो भी आप स्टोरी अपनी बता रहे हो, अपना नरेटिव एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो उसको पहले से स्टार्ट करो कि हाँ घर पे लोग आए थे या किसी और के घर पे लोग आए थे तो दे कॉल्ड मी टू हेल्प, या आई वेंट देयर आउट ऑफ काइंडनेस एंड आई वेंट टू हेल्प। उसके बाद एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताओ। सपोज करो कि दिस इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, 5 नंबर इसके ले लो। अब सोचो 5 मार्क्स में आप एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप बताओगे 5 मार्क्स में कि आपने एक्चुअली क्या किया एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू गेन्ड फ्रॉम हियर, एंड देन 5 मार्क्स विल बी योर कंक्लूजन। ये पूरा दैट इंट्रोडक्शन, दैट हाँ आपको हेल्प करना था, चलो ठीक है हम हेल्प करने के लिए चले गए, व्हाट आपने एक्चुअली किया क्या वहां पर। ओके, यू विल नॉट कुक। यहाँ पर क्या लिखा है दैट उन्होंने प्याज काटा, उन्होंने टमाटो काटा, पोटैटो काटा और हमने खाना बना दिया। तो व्हाट यू हैव टू राइट। इसीलिए ये चीजें हम आपको फिर से ध्यान करवा रहे हैं कि इनकेस कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको 4 बार पढ़ो। आपने क्या किया है एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू गेन्ड फ्रॉम इट, ठीक है, ये इसका पार्ट है। और किस एक्सपीरियंस से, खाना बनाने में जो आपने हेल्प किया उससे आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, ये जो पार्ट है दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यू। फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग नेशंस, आपको इसके फॉर या अगेंस्ट में लिखना है। ओके, तो दोनों में से एक ही पार्ट आप इसका लोगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। हमने पहली चीज बताई थी कि पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, ठीक, इंट्रोड्यूस करो सबसे पहले में कि द मोस्ट वेल नोन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बताओ कि ये वो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं रिप्रेजेंट एटलीस्ट 2 कंट्रीज की, अपने मतलब अपनी अपनी कंट्रीज से वो लोग आते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं। और कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, अदर्स जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप होते हैं, पैरालंपिक गेम्स होते हैं। From time immemorial, international sports have influenced the democracy, freedom, culture of the countries worldwide. I stand for this concept. You can write this line when you will write argumentative, that I stand for this. अरे ठीक है, that I stand for this concept, दैट, ये पूरी लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हो एज इट इज। जैसे बहुत व्हाट स्टूडेंट्स डू कि सीधे यहीं से स्टार्ट कर देंगे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग नेशंस, बिकॉज ये नहीं करो, स्टार्ट करो बट टेल द इंट्रोडक्टरी पॉइंट की जो भी चीज आप एक्सप्लेन करो वो एक्चुअल में है क्या। ओके, जैसे रुको हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव में देखते हैं कि क्या क्या चीजें थी जो हम लोगों को लिखनी थी। टेक वन क्लियर स्टैंड एंड यू विल टेक दैट इन द बिगनिंग। कहाँ गया, ठीक है, एट द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग में आप इस चीज को बताओगे। डोंट इंक्लूड बोथ गुड एंड एविल, आइदर ऑफ द थिंग्स आप लोगे। कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, ऑल्दो वो चीज अच्छी है बट फिर भी उसकी बुराइयां ज्यादा है, ऐसे करके आप कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल दो, जस्टिफिकेशन दो एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दो। डोंट सिट ऑन द फेंस, अवॉइड टेकिंग डिसीजन, कि आप मतलब ये नहीं कि जो पढ़ रहा है, रीडर जो है वो पढ़ रहा है, उसके ऊपर आप छोड़ दो कि हाँ नाउ द पर्सन कैन डिसाइड कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, जनरल स्टेटमेंट और सम सॉर्ट ऑफ हुकी लाइन, कि हाँ आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो जो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अलग है, उसको इलेबोरेट करो, थोड़ा सा उसका डिफाइन करो कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एंड यू विल टेल क्लियरली टेल कि आप किस साइड पर हो। उसके बाद एक टॉपिक, अपना एक आर्ग्यूमेंट पेश करो, उसको सपोर्ट करो विद एग्जांपल। सेकंड टॉपिक सेकंड सपोर्ट, थर्ड टॉपिक थर्ड सपोर्ट, मींस हर बार एक आर्ग्यूमेंट पेश करो और उसके बाद नीचे उसके एक एग्जांपल लिखोगे, एंड देन अगेन यू विल रीस्टेट द सेम पॉइंट जो सबसे पहले लिखा था लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में, और उसके बाद पूरा कंक्लूजन करके उसको खत्म कर दोगे। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया है और बिगनिंग में ही बता दिया है दैट आई स्टैंड फॉर दिस कॉन्सेप्ट। फिर कहा गया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आर अ मैटर ऑफ प्राइड, मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि दैट
International sports directly go with world politics, are a matter of pride and prestige for the nation. Many sports have persuaded many minorities to take part in different sport events, कि इससे ये भी एक बेनिफिट हुआ है. ओके, मॉडर्न इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दें. हाँ, मॉडर्न इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स आर अ huge business opportunity for many countries globally, especially political, economic and other cultural growth. Sports increases compassion. अपने strong arguments इसमें पेश करोगे, जैसे कि it increases compassion and encourage peace between nations. Sports exchange between nations is often used as an instrument of public diplomacy, considering that the aim is to increase mutual, mean दो countries के बीच में mutual understanding करना is the main aim. It is safe to express displeasure with the other country and its policies because it is not a significant issue compared to the international political system. Commonest way to show the resentment through sports events is by boycotting the sport. It is estimated that the most calculated and low cost alternative to any other political action, कि अगर आपको किसी भी कंट्री में नहीं खेलना है तो उस जगह के बस आप स्पोर्ट को बॉयकॉट कर दो, इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे ये इतना ज्यादा मतलब उस अकॉर्डिंग लिखो कि जितना भी नॉलेज आपको उसके बारे में, और एंड व्हाट यू थिंक. Sports often start and provoke political conflict between countries, since an athlete or a team represent his or her nation, a counterpart hatred can strongly dislike the nation. तारीफ तो हमको इसमें कहीं दिख नहीं रही है. फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि attaching sports to a scope international to the scope of international relations would be helpful to boost the size of diplomacy. ओके, देखो यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो सिर्फ डिप्लोमेसी और इन सब चीजों से ही रिलेट कर दिया गया है, पॉलिटिकल वर्ल्ड से रिलेट कर दिया गया है. आप ये भी लिख सकते हो इसमें कि दैट ऑडियंसेस कम एंड सिट टुगेदर, ऑडियंसेस फ्रॉम द टू कंट्रीज और फ्रॉम द टू प्लेसेस कम एंड सिट टुगेदर, दे वॉच द show there, they watch the match there, and sometimes means the two major कंट्रीज इन कन्फ्लिक्ट, जिनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, वो भी स्पोर्ट्स के कारण ही एटलीस्ट आकर के साथ में खेलते हैं. तो ये सारे जो चीजें ये आप लिख सकते हो उसमें. ओके, उसके बाद जैसे ये है, विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल मीडिया पीपल कैन सिट इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, वॉच मेजर इंटरनेशनल इवेंट साइमल्टेनियसली, एक साथ वो उसको देख सकते हैं. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंडीड रिक्वायर अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री. इट बिल्ड्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज कल्चर्स, फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस. ये आप इसमें पॉइंट मेंशन कर सकते हो. अब क्या कहा गया है कि उसको अगेंस्ट में ऑब्वियसली आप आइदर ऑफ द थिंग्स लिखोगे. इंट्रोडक्टरी पैरा तो आप सेम लिखोगे, ठीक है. जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये तो आप यहां से लेकर यहां तक इसको लिख सकते हो. यहां से लेकर के ये वाला पूरा पैराग्राफ आप यहां तक लिख सकते हो. उसके बाद का जो भी है वो आप ऐसे करके मतलब नेगेटिव वे में ही लिखोगे, और उसमें आप ये वाली लाइन भी मेंशन कर सकते हो, दैट आई स्टैंड अगेंस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रमोट फ्रेंडशिप बिटवीन नेशंस. तो इसके आप अगेंस्ट में, तो यहाँ पर यू विल मेंशन दैट माय व्यूज आर अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग नेशंस. ओके, तो डायरेक्टली एकदम स्टार्टिंग में उस चीज को मेंशन कर देना आफ्टर गिविंग योर इंट्रोडक्टरी पॉइंट. इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स आर इंडीड अ वे टू इंक्रीज प्लीजेंट रिलेशंस बिटवीन नेशंस. अब देखो यहाँ पर एक उसने पॉजिटिव लाइन ली है, ठीक है, बट उसको बहुत सिंपल तरीके से उसने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉन्ट्ररी कर दिया है बट लगा के. तो ये भी आप कर सकते हो कि हाँ वो भले ही प्लीजेंट रिलेशंस क्रिएट करती है, बट hatred or toxic competitiveness finish all the ascents, lead to enmity between the countries. As there are two sides to the coin, sports on the one hand promote familiar and friendly vibes, on the other hand increase displeasure among nations, कि मतलब नेशंस में डिस्प्लेजर लेकर के आते हैं. अकॉर्डिंग टू सर्वे,
ये सर्वेज इसमें बहुत दिए हुए हैं कि अग्रेशन इंक्रीजेस कंसिडरेबली इन द पार्टिसिपेंट्स of the World Cup. The participants of the non-qualifying countries experience a significant rise in their aggression level during World Cup year. वर्ल्ड कप के दौरान जो भी कंट्री नॉन क्वालिफाई होती है, मतलब वो क्वालिफिकेशन से बाहर चली जाती है, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है. इसके the results went through rigorous testing and the estimated effect was much larger when countries where soccer is the most played sport. इन जगहों पर जहाँ पर सॉसर या फुटबॉल खेला जाता है वहां पर रिजल्ट्स जो हैं वो उसको बहुत ही कड़ी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है. फिर क्या कहा गया है, that it increases the resentment, it increases aggression in the participants about 2/5 as much as revolution does. एक कंट्री में अगर रिवोल्यूशन हो रहा है जहां पर वायलेंटली किसी भी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जा रहा है, तो उस प्लेस से ज्यादा, मतलब उस प्लेस का, जैसे ये कंट्री है जहां का रिग्रेशन, जहां पर रिवोल्यूशन चल रहा है, उस जगह की गवर्नमेंट को जबरदस्ती हटा दिया जा रहा है, तो कम से कम इसका 2/5 जो है वो तब होता है when some sort of वर्ल्ड कप इज गोइंग टू एग्जिस्ट. 4 साल बाद जब भी वर्ल्ड कप आता है तो उस टाइम पर उस नेशंस में ये सारी चीजें होती हैं. देन देयर आर बायस्ड जजमेंट्स ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट जजेस cause a threat to the validity of international sports competitions. Ki sometimes people also question that there are biased judgments. Nationalities of jury members can be a major source of bias. ये भी question किया गया है कि हो सकता है कि वहाँ के जो जूरी हो वो अपने अपने नेशंस की हो, तो इसके कारण भी the biasness can arise as they consciously or subconsciously may prefer athletes from their own nation. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप ये पूरा पढ़ लेना, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसमें दी हुई है. एंड उसके बाद लास्ट में एक चीज दी हुई है, इन स्पाइट ऑफ एंडलेस नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स द वर्ल्ड रील्स अंडर द एवल्स ऑफ पार्शियलिटी, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड हॉस्टाइल रिलेशंस. भले ही बहुत सारे, देखो यहाँ पर फिर उन्होंने ये चीज कंक्लूड कर दी है कि भले ही बहुत सारे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हो, फिर भी जो वर्ल्ड है वो पार्शियलिटी, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्टाइल रिलेशन से अभी भी जूझ रहा है इन द नेम ऑफ दीज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. ठीक, इसके बाद आता है लॉकडाउन. ओके, नाउ लॉकडाउन में फर्स्ट, अब देखो लॉकडाउन का पहले पढ़ लो कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग लिख सकते थे. ये नहीं है, रिफ्लेक्टिव वाला नहीं है, ये वाला है एक्सपोजिटरी, जिसमें आप दोनों चीजें मेंशन कर सकते हो कि अपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सप्लेन समथिंग, योर पर्सपेक्टिव भी इसमें आप डाल सकते हो, कि मतलब अलग अलग तरह से आप इसमें देख सकते हो. ये हमने आपको उस टाइम पर भी समझाया था जब हमने आईएससी इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेन पेपर जब सॉल्व करवाया था. इट इंक्लूड्स मोर देन मेयर डिटेल्ड डेफिनेशन. अगर लॉकडाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने से कई ज्यादा है ये वाला टर्म. फैक्ट्स आप यूज कर सकते हो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इससे रिलेटेड. आप इसमें एनी टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन लिख सकते हो. अभी हमने बताया था कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है. ऐसे मतलब किसी भी चीज को आप इलेबोरेट कर रहे हो. कॉम्पोजिशन में यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, अ पोएम और एनी सॉर्ट ऑफ नैरेटिव. ठीक है, you can give your views on it. So even a short story can be written here, but it should only be a short story. एक हुकी लाइन आप इसमें मेंशन कर सकते हो. डिफाइन योर स्कोप एंड ये थेसिस स्टेटमेंट, कि अगर उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है आप उसको मेंशन कर सकते हो. हुकी लाइन और हुक इज सम सॉर्ट ऑफ ओपनिंग लाइन जो रीडर के अटेंशन को गेन करती है. पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एलैबोरेशन लिखो, एंड यू कैन लिंक बैक टू द अदर पॉइंट. समराइज करो अपने पॉइंट्स को, थेसिस को रीस्टेट करो, एंड यू कैन यूज रिकमेंडेशंस, अगला स्टेप या फिर फूड फॉर थॉट, इन द सेंस कि व्हाट सजेशंस यू गिव टू गेट द इम्प्रूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, क्या कहा गया है इसमें, दैट
ये एकदम स्टार्टिंग है कि द एंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया अंडरवेंट अ सी चेंज। ये डेट तो इंसान भूल ही नहीं सकता है। ये एक दिन का लॉकडाउन था और उसके बाद 23 मार्च से पूरा का पूरा नेशन जो है वो लॉकडाउन में चला गया था। पहले, सबसे पहले तो कम से कम 30 मार्च तक, 30, हाँ, 31 मार्च तक का लॉकडाउन, सबसे पहला लॉकडाउन वही हुआ था। एक दिन का तो ये जनता कर्फ्यू हुआ था, याद मत दिलाओ उनको। An unknown stranger had suddenly invaded us all with so many ifs and buts, कि मतलब unknown stranger यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उस पर्टिकुलर कोविड की बात हो रही है। ओके, गवर्नमेंट अनाउंसेस था, तो यहाँ पर आप पास्ट टेंस में इसको कर दोगे क्योंकि आप उस पर्टिकुलर डेट की बात से शुरू कर रहे हो। आप किसी भी तरह से इसको शुरू कर सकते हो, लॉकडाउन या उससे रिलेटेड भी कुछ मान सकते हो। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज समझना है यहाँ पर। 2020 के बाद अब जाकर के आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आप दे चुके हो, डिस्क्रिप्टिव अब हो रहा है। तो they will surely ask you something related to these 2 years, 2020 और 2021 के बीच में जो भी चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड आपसे एक जनरल व्यू तो वो लेंगे ही। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो डायरेक्टली कोविड हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू दिस हो, चाहे इंडिया, वट एवर इंडिया इज हैज फेस्ड इन दीज 2 years वो हो। ओके, तो ये सारी चीजें, या इवन लेबर वाला जो पार्ट था, मतलब माइग्रेंट लेबर्स को कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ये सारी चीजें, तो एटलीस्ट हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लो कि इनकेस ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, वो आपसे पूछेंगे जरूर, ऐसा कुछ आ जाता है तो एटलीस्ट आपके पास हो पढ़ने के लिए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंप्लीट लॉकडाउन ऑफ एन इकोनॉमी एंड लाइफ व्हील सडनली पॉज्ड, ईडी हो जाएगा। नाउ व्हाट प्रिजम्पशंस, अजम्पशंस, एप्रीहेंशंस, एंटिसिपेशंस, मतलब कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, जस्ट बिकॉज कि बोर्ड एग्जाम सब कुछ बंद हो गया था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ था वो बिजनेसमैन को हुआ था, स्कूल्स को हुआ था। एंड एयर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिवेल्ड विद इवन बोर्ड एग्जाम्स कमिंग टू एन एब्रप्ट हॉल्ट। बोर्ड एग्जाम्स भी रुक गए थे, क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था कि उनके एग्जाम एक्चुअल में होंगे भी कि नहीं। अचानक से कल पेपर है, आपको पता चल रहा है आज कि आपका हो गए, मतलब कल पेपर नहीं होगा, कब होगा ये भी नहीं पता है। Schools and institutions shut down with no clue about their reopening. क्यों, कब वो reopen होंगे तब नहीं पता चलेगा। The end of March was being looked forward as the एंड ऑफ द ट्रबल। लग रहा था कि 31 मार्च तक चीजें खत्म हो जाएंगी, बट नो, मोर ट्रबल्स फॉलोड। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, आई बीइंग अ टीचर से लिखा है, हु आर यू, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक। और उस समय आप किस क्लास में थे? उस समय आपने अपना 10th का बोर्ड दिया था और उसके भी जो पेपर्स है वो रह गए थे, कई सारे पेपर्स रह गए थे, शायद ज्योग्राफी का रह गया था, इकोनॉमिक्स का रह गया था, साइंस में से एक सब्जेक्ट का पेपर रह गया था, ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट का। तो ये चीजें आप उसमें मेंशन करोगे। देन, क्योंकि ये हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टीचर के तरह से है। कीप दिस इन माइंड, बहुत मार्क्स मिलते हैं अगर आप एक एज अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिशन लिखते हो तो। कीप योर हार्ट आउट इन द नोटबुक दैट यू विल गेट। ओके, तो यही सेम चीज यहाँ, पढ़ने को इसको पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आई विल नॉट टीच यू दिस, क्योंकि ये वो चीजें जो आपको नहीं लिखनी है। आइडिया के लिए यू कैन टेक दिस। देन, हाँ, इसमें ये जरूर लिख सकते हो कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सक्सेसफुल एकेडमिक ईयर दैट वी आर वेटिंग। और इसमें यू कैन कीप, मतलब एवरीथिंग। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें, ये हमने आपको सिर्फ एक बिगनिंग दे दी थी कि आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एंड इसको ऐसे कर सकते हो, बट बीच का यू विल राइट इन योर ओन वे। एज अप्रोप्रिएट लिखना, ज्यादा दिमाग मत चलाना कि हाँ हम 25 साल के हैं और मेरी जॉब चली गई और ये हो गया वो हो गया, ये चीज नहीं। वो आपको इसके मार्क्स नहीं देगा। जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन पे आपको ऐसे लिखना है।
Okay, then next is online education during the pandemic has been a blessing in disguise. अगर ये और एक और चीज, अगर ये हम पूरा पूरा पढ़ करके आप लोगों को एक एक लाइन समझाएंगे अभी ना, तो 2 घंटे का ये पूरा ये हो जाएगा एंड इट विल वेस्ट योर टाइम. तो सिर्फ उतना समझो जितना आपके लिए नेसेसरी है. यस, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. यू कैन रीड इट जितना आपको समझ में आए, बट ऑब्वियसली दिस वॉज जस्ट फॉर यू टू नो कि स्पेसिमेन ऐसे आएंगे. एक्चुअली एसेज आपको कुछ और ही दिए जाएंगे, ये सिमिलर ऐसे आपको नहीं दिया जाएगा इन योर एग्जाम्स. ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग पेंडेमिक हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. गिव योर व्यूज इन द अबव स्टेटमेंट. अब देखो, अगेन आई एम सेइंग कि राइट इट एज अप्रोप्रिएटली, जिस एज में हो. ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग बताओ कि वेदर इट वॉज ट्रू, वेदर इट वॉज फॉल्स. आपको इसमें अपने व्यूज देने. इट कैन बी एनी वे, इट कैन बी बोथ ऑफ द वेज. बस इसको आपको रिफ्लेक्टिव बनाना है. देखो रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है. अरे आई हैव टू गो देयर. हाँ, ये रहा मेरा रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिसमें हमने क्या चीज समझाई थी कि इसमें कोई शॉर्ट स्टोरी आप नहीं लिखोगे. ऑनलाइन एजुकेशन की अगर आपको बात पूछी गई, आप कोई भी उसमें शॉर्ट स्टोरी नहीं लिखोगे. मेटाफोरिकल मीनिंग आप लिख सकते हो, जैसे उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो ये उसका मेटाफर ही है कि हाँ, उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे कंसिडर किया गया है. ब्रिंग आउट द हिडन मीनिंग. टेल देम दैट यस इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. उसको सिंपली स्टेट मत करो. ऑनलाइन एजुकेशन जैसे दिया हुआ है, तो आपको उसको सिंपली उसकी मीनिंग नहीं बतानी है. ठीक है, एक्सप्लेन कर दो मीनिंग, बट यू विल ऑल्सो टेल कि उसकी हिडन मीनिंग क्या है. वाई इट इज अ ब्लेसिंग. ब्लेसिंग मीन्स वरदान. किसी और भेस में वो एक वरदान के जैसी कैसे है. यूज प्रोवर्ब्स, लाइन्स फ्रॉम लिटरेचर. और यही वो ऐसे है जिसमें आप कोटेशंस यूज कर सकते हो, किसी और में नहीं यूज करोगे. इनकॉर्पोरेट द नंबर ऑफ आइडियाज एंड इलिस्ट्रेशंस. जितने एग्जाम्पल्स और आइडियाज आप दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट. हाँ, शॉर्ट स्टोरी इज नॉट, मतलब ये नहीं कि आप उसमें पूरी पूरी स्टोरी लिख लो, बट यू कैन राइट अ छोटा हिस्सा ऑफ योर लाइफ स्टोरी. किसी और की कहानी नहीं, अपनी कहानी का एक छोटा हिस्सा आप इसमें मेंशन कर सकते हो. पूरा का पूरा ऐसे इसमें नहीं लिखोगे. तो द सेम थिंग इज गिवन हियर. जैसे यहाँ पर एक कोटेशन हमने कहा था ना कि रिफ्लेक्टिव में अगर आपसे पूछा है टू गिव योर व्यूज, आप इसमें कोटेशन मेंशन कर सकते हो. तो क्या कहा गया, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. नेवर बिफोर हैज दिस सेम saying been more accurate than in the present time. It's all about the perspective which directs our mind. First COVID, then lockdown. It was a nightmare. मतलब उस चीज को लिंक किया गया. ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन क्यों की गई थी, वो इसीलिए की गई थी ना. इट वाज ड्यूरिंग द पेंडेमिक. ऐसे ही नहीं की गई थी कि हाँ हम लोग ऐसे ही कोई क्लास ले रहे हैं या हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं. इट वाज ड्यूरिंग द पेंडेमिक. तो आपको उसको कोविड और लॉकडाउन से ही लिंक करना है. पीपल हैव बीन सफरिंग एंड डाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड. देयर वाज इवन अ सेंस ऑफ गिल्ट फॉर हैविंग लग्जरी delivered to our doorstep. The situation resulted in the loss of courage and negativity surrounding us from every nook and corner. Means starting में whenever this lockdown and COVID started, so everywhere there was only negativity. Everyone was stuck in their homes. Main thing is to remember that it's all our attitude at the beginning. It's our attitude at the beginning of a difficult task and situation, which are more than anything else will affect a successful outcome. मतलब कि whenever we need to have a successful outcome, always the thing will be very much difficult in the beginning. And similarly students were not able to understand at the beginning कि हाँ भाई ये हो क्या रहा है. हम लोग के स्कूल्स बंद हैं, हम लोग एग्जाम मतलब स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने क्लासमेट से मिल नहीं पा रहे हैं. ठीक, तो उस टाइम पर भले ही ये सारी चीजें थी, बट स्टिल इट वर्कड. ऑनलाइन एजुकेशन वर्कड एज अ ब्लेसिंग कि एटलीस्ट जो भी आपकी पढ़ाई थी वो चलती जा रही थी. देखो इसमें आप ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड लिख सकते हो. लॉकडाउन में आप इसका इफेक्ट लिख सकते हो, दैट
just because ki most of the businesses were shut down, parents were not able to let their child study in the school due to um, the issues of fees, and many of the businesses were shut down. So they, what they did, they started, means I even know that some scrap seller जो होते हैं, that they, just because कि scrap अब वो नहीं सेल कर सकते थे, भाई लॉकडाउन था, वो सिर्फ essential item सेल कर सकते थे, तो what they did, they even started selling वेजिटेबल्स। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप उस टाइम पर देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बच्चे, क्या मतलब छोटे छोटे, इवन 9th 10th क्लास के बच्चे, आई हैव सीन दैट दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स की जस्ट बिकॉज की स्कूल बंद है एंड दे नीड टू अर्न समथिंग फॉर देयर फैमिली। तो ये सारे आप एग्जाम्पल्स उसमें लिख सकते थे जब आपको लॉकडाउन या कैसा कुछ पूछा जा सकता है। एंड व्हेन यू विल राइट इट रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन यू कैन टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑल्सो, एंड यू कैन से कि हाँ इवन दो इट वॉज अ ब्लेसिंग, आप उसमें ये भी चीज मेंशन कर सकते हो दैट स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया था, पेरेंट्स वर नॉट एबल टू गिव स्टूडेंट्स द फोन, हर किसी के पास नहीं था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये भी चीजें हुई थी। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है कि आपको जस्ट अपने व्यूज देने, जिसे कहते हैं एक सम सॉर्ट ऑफ चर्चा हो रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, और आपको अपने व्यूज देने हैं उस पर। Okay, the entire world is grappling, struggling with a pandemic that has brought about monumental or huge change in the very life of the very way of life, workplace, marketplace, especially in education. Nothing has undergone a tremendous change. मतलब इससे ज़्यादा चेंज कभी भी नहीं हुआ था एजुकेशन सिस्टम में। फ्रॉम क्राउडेड क्लासरूम्स टू अटेंडिंग क्लासेस ऑनलाइन। क्राउडेड क्लासरूम से जब आप क्लासेस को ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, मतलब डिफरेंस आप समझो कि स्टडी मेथड्स में कितना ज्यादा चेंज हो गया था। हाँ, आप इसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो, कैसे करके, ये वाली जो लाइन दी हुई है कि जो स्टार्टिंग में हमेशा एक चॉक एंड टॉक प्रोसेस था, एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग लिया जा रहा था, नॉट एवरीवेयर स्मार्ट बोर्ड्स वर यूज्ड, रोट लर्निंग बहुत ज्यादा होती थी, अब वो चीज खत्म हो गई थी। एक और तरह से उसको लिख सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पर लाइक इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ द टीचर, ऑब्वियसली, मतलब वो होते ही है, भले ही टीचर कुछ भी ना करे उसके बाद भी वो लोग डरते ही हैं टीचर से। तो दिस वाज नॉट हैपनिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि अगर वो बच्चा अकेले भी तो एटलीस्ट वो पूछ सकता है कि हाँ मैम हमको ये चीज नहीं समझ में आई है। आर टीचर एजुकेशन सिस्टम रिमेन सो प्रिमिटिव, कि हमेशा से बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल रहा है, कि न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग कभी फुली इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। एग्जामिनेशन हमेशा मेमोरी बेस्ड थे, भले ही ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव मीन्स डिस्क्रिप्टिव। तो वेटेज वाज गिवन टू द नॉलेज कंपोनेंट रादर देन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो इससे क्या होता है, लर्नर्स की क्यूरियोसिटी, उनका इनोवेटिव अप्रोचेस वर नेवर ट्राइड इन फुल स्केल फॉर फियर ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। टीचर्स को इतना ज्यादा सिलेबस कंप्लीशन का वो चिंता थी कि वो कभी उस पे, मतलब इनोवेटिव अप्रोचेस पे जा नहीं पा रहे थे। ये फिर उस सेंस में पहुंच गया कि टीचर वाला सेंटर्ड हो गया, राइट इट अकॉर्डिंग टू योर मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि ऑनलाइन टीचिंग हैज हेल्प्ड अस कीप विद द करिकुलम फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ होम, कि एटलीस्ट हम लोग घर पे हैं बट फिर भी हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं। एल्स we as a student would not have opened our books and it would have brought a larger gap between the study and us। ठीक, ऐसे भी आप इसको इसको लिख सकते हो। उसके बाद ये भी आप इसमें लाइन मेंशन कर सकते हो कि एवरी सिचुएशन हैज इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कोरोना सिचुएशन भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता था एज कंपेयर टू ऑन कैंपस क्लासेस। ठीक है, ऑन कैंपस क्लासेस भाई एक घर में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक या दो फोन्स होंगे, तो टाइम टेबल ही ऐसा बनता था कि अगर एक टाइम पर एक सिबलिंग पढ़ रहा है तो दूसरे की टाइमिंग या तो क्लैश हो जाती थी या तो बहुत लंबे समय की क्लासेस चलते थे। there sometimes there is less availability of courses। देखो isolation, it has created isolation allowing more independence, connectivity which mainly hamper online learning। नेटवर्क इश्यूज बहुत होते थे, टीचिंग में भी बहुत इश्यूज होते थे,
These issues are temporary and will be resolved with time and experience as we used to get through the concept. कि जैसे जैसे हम उस चीज में जूझते गए, हम लोग ने वो सारी चीजें सीख ली. जस्ट डोंट गिव अप. और यहाँ पर फिर आप एक कोटेशन यूज कर सकते हो, दैट इज गिवन हियर. ठीक, दिस इज व्हाट योर दिस पार्ट इज. उसके बाद लास्ट आता है योर शॉर्ट स्टोरी. यूजुअली शॉर्ट स्टोरी कम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, बट स्टिल हम आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. ये वाला जो पीडीएफ है ये हम आपको ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, इसी नाम से होगा, ये ऐसे राइटिंग के नाम से. आप उसमें सर्च कर सकते हो, तो एटलीस्ट इसको रीड कर लेना कि क्या चीजें हमें करनी, क्या चीजें नहीं करनी. अब शॉर्ट स्टोरी में क्या कहा गया है, ओपनिंग सेंटेंस शुड, इन केस कोई शॉर्ट स्टोरी दी हुई है और उसमें बोला है कि ओपनिंग सेंटेंस से आपको स्टार्ट करना है, तो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए. नैरेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपनी कहानी बता दे रहे हो. डोंट प्लेगराइज, डोंट राइट योर लिटरेचर सिलेबस इन दिस, या फिर कोई भी मूवी या बुक का कॉन्सेप्ट इसमें मत लिख देना. ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन, अगर कोई सेंटेंस आपको दिया है तो उसको एज इट इज लिखो. फर्स्ट या थर्ड पर्सन में लिखी होनी चाहिए. एक शॉर्ट स्टोरी की बुक निकालो, उसमें देखो कि स्टोरी या तो आई करके लिखी होती या तो ही करके लिखी होती है. शुड कंटेन, ये सारे उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. सेटिंग वो कहाँ से शुरू हुई है, देखो ऊपर नीचे आप इसको ऑब्वियसली कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है इतना, लेकिन आप उसको बताओगे. अगर कोई सेटिंग भी है तो वो कहाँ पे, मतलब wherever the story has been set, वो कहाँ, प्लॉट किस चीज के बारे में है, कैरेक्टर्स उसमें कौन है, डायलॉग्स उसके आप मेंशन करोगे डायरेक्ट वाले, और उसके बाद लॉजिकल एंडिंग भी मेंशन करोगे. और इसी में ही ये सारे पॉइंट्स हमने स्टार्ट दे दिए थे आपको, सो दैट आपको एटलीस्ट एक आध तो इसमें से आप उसको अप्लाई कर ही लोगे. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही ये पूरी शॉर्ट स्टोरी है. द स्टोरी एंटाइटल्ड मिस्ड कॉल द ब्लाइंड ग्रैंड मदर. अभी ये भी हम पूरी पूरी नहीं पढ़ेंगे. द ब्लाइंड ग्रैंड मदर हैड फॉर्म्ड एन ओल्ड अटैचमेंट विद अ टेलीफोन रिंग which only rings at 12 o'clock in the afternoon, signaling the start of the day. तो इसमें क्या कहा गया है कि मतलब एक ये पूरी स्टोरी दी हुई है मिस्ड कॉल के ऊपर, जिसमें ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्या किया था, एक ओल्ड अटैचमेंट लगा रखा था टेलीफोन रिंग के साथ, जिससे वो सिर्फ 12 बजे दिन में बजता था, सो दैट शी कैन नो कि हाँ जो दिन है वो स्टार्ट हो चुका है. ब्रंच इज ब्रॉट बाय माई मम फॉर माई ग्रैंड मदर. मेरी मम्मी, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी के लिए ब्रंच लेकर जाती थी. ब्रंच इज ब्रेकफास्ट एंड लंच का कॉम्बिनेशन. शी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोन कॉल, द मिस्ड कॉल. ठीक, चेक वेदर द बैटरी इज फुल और नॉट. माई मदर, ग्रैंड मदर अर्ज इट वॉज एम्प्टी 2 weeks ago and I missed Gautam's call for 2 days. That's something I don't want to happen again. My grandmother had been blind for the previous 5 years due to diabetes. ये पूरी उनकी प्लॉट है. अब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये घर में कोई स्टोरी ली गई है. ठीक, ये उसका पूरा यहाँ से मतलब डायलॉग्स तो इसमें है ही, मदर है, ग्रैंड मदर और डॉटर है. और ये क्या की गई है, ये फर्स्ट पर्सन, आई लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये फर्स्ट पर्सन से ली गई है, मतलब आई करके लिखी गई है. एंड थर्ड पर्सन यहाँ पर माय ग्रैंड मदर एंड माय मदर है. माय फादर, my grandmother was attacked again 2 years later. My father, who was a dedicated servant to the nation, died. He wasn't merely killed, he was martyred. The homeland was more important to him than the mother. And the grandmother, despite her fear of losing him, admired it. It's fully charged, mother said as she served her. You won't miss any more calls from Gautam. तो ये पूरी उन्होंने स्टोरी समझाई गई है इसमें. ठीक है, बस हमको इतना आपको इसमें कहना है कि वॉट एवर दीज, प्लीज रीड दिस होल स्टोरी, और उसके बाद यहाँ तक इसको कंप्लीट करके खत्म कर देना. बट यू जस्ट नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल एंडिंग. अचानक से मत बता देना कि सब कोई मर गया और स्टोरी खत्म हो गई. तो इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल एंडिंग. ओके, अब उसके बाद ये फिल्म रिव्यू का पार्ट था, ये हमने इसमें रख लिया है सो दैट आप इसको पढ़ लो अपने आप से. हम ऑलरेडी फिल्म रिव्यू और सारे रिव्यूज हम करवा चुके हैं दुनिया भर के, तो उसको पढ़ लेना.
प्रपोजल राइटिंग हमने इसमें नहीं रखी है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अलग फॉर्मेट दिया था जो कि आईएससी के फॉर्मेट से नहीं मैच कर रहा था, इसलिए हमने उसको हटा दिया। इन केस आप लोग उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते और फिर हमको कंफ्यूज करते, इसीलिए। तो आई होप इतनी चीजें आपको इसमें समझ में आ गई। री रीड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ ऑन 24th I'll be posting a video on time management and paper presentation, और उसमें कुछ हम क्वेश्चंस भी उठाएंगे ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो अभी तक आप लोगों ने हमसे पूछे हुए हैं। ठीक, तो आई विल री एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस देयर इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग इन द कमेंट्स, and if there's something still that you need to understand, ask me. Okay, and best wishes for your exam. Thank you.